زندہ جلالی بابرکت اور عظیم نام میں ایک بار پھر خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کی خدمت میں۔ آج میں خدا یسوع مسیح کی تماثیل میں سے جس تمثیل کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ واحد تمثیل ہے جو 4 مرتبہ بیان ہوئی ہے متی، مرکز اور لوکا میں، اور لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری میں یہ 2 مرتبہ بیان ہوئی ہے، لوکا 8 باب میں اور اس کی 16 آیت میں، اور اسی طرح لوکا 11 باب اور اس کی 33 آیت میں۔ میں حوالہ آپ کے سامنے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے پڑھوں گا۔ صرف 2 آیات ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گا، متی اس کا 5واں باب اور اس کی 14 اور 15 آیات۔ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھوں گا، اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر سکوں کہ یسوع مسیح نے یہ تمثیل ایمانداروں کے بارے میں کیوں کر کہی۔ متی 5 باب اور اس کی 14 اور 15 آیات میں سے، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ خداوند کے کلام میں سے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے۔ عزیزو، اس تمثیل میں یسوع مسیح نے ہم ایمانداروں کو، مسیحیوں کو دنیا کا نور کہا ہے، یعنی ایماندار جو مسیح میں ہیں وہ دنیا کا نور ہیں، جبکہ تمام نور اور ہر طرح کے علم اور روشنی کا جو سرچشمہ اور منبع ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ اور یسوع مسیح کا خود اپنے بارے میں یہ بیان ہے اور اس کی گواہی ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اور ایمانداروں کو جب یسوع مسیح نے یہ کہا اس تمثیل میں کہ تم دنیا کا نور ہو، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہم جو نور کا منبع اور جو نور کا سرچشمہ ہے یسوع مسیح، اس سے نور، اس سے علم، اس سے قوت، اس سے برکت لے کر ہم اس کو منعکس کرتے ہیں، اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور نور جو ہے اس کا کام تاریکی میں چمکنا ہے۔ نور کی چھوٹی سے چھوٹی کرن بھی بے تحاشا تاریکی کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے، اس کو منتشر کر دیتی ہے، ہر طرح کی تاریکی کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ یہ نور کی کوالٹی ہے، یہ نور کی خاصیت ہے، اور یہی یسوع مسیح اپنے ایمان لانے والوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے ایمانداروں سے یہ چاہتا ہے۔ اگر ہم زبور 119 اور اس کی 105 آیت دیکھیں تو وہاں کیا لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اب یسوع مسیح خدا کا کلام ہے، اس کے منہ کا کلمہ ہے۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، متجسم ہوا، جسم لیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے جو خدا کے منہ کا کلمہ ہے اور جو مجسم ہوا، اور وہی ہمارے لیے چراغ اور روشنی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ زبور 119 ہی اس کی 130 آیت میں لکھا ہے کہ تیرے کلام کی جو باتیں ہیں، تیرے کلام کی جو تشریح ہے وہ نور بخشتی ہے۔ تیرا کلام، تیرے کلام کی تشریح یعنی یسوع مسیح کا جہاں بھی ذکر ہے وہاں نور ہے، روشنی ہے، لوگوں کو برکت ملتی ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے ایمانداروں سے یہ کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، تو اس سے مراد کہ صرف ایماندار، صرف وہ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، نہ کہ ہر کوئی، نہ کہ دوسرے لوگ، دوسری قومیں، غیر قومیں، دوسرے لوگ، صرف ایماندار ہم دنیا کا نور ہیں، اور دنیا ہماری وجہ سے، ایمانداروں کی وجہ سے نور میں چلتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تاریکی ہمیشہ نور سے دشمنی رکھتی ہے، لیکن ہمیں کوئی بھی چیز مسیح کی، رومیو کے خط میں لکھا ہے، ہمیں کون سی چیز مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اب ہم اس تمثیل کی طرف آتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی بھی چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے، اور پھر اگر ہم لوکا میں پڑھے تو لکھے کوئی چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے یا پلنگ کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ اس کو چراغ دان پر رکھتے ہیں، روشنی پہنچے۔ اب پلنگ کے نیچے رکھنے سے یا
चिरागदान या पैमाना के नीचे रखने से मुराद है रोशनी को छुपाना, उसको मुनक्स ना करना, लोगों को अंधेरे में रखना। और फिर जब पैमाना के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी पैमाना के नीचे नहीं रखता, तो पैमाना उस दौर में भी और आज भी हम जानते हैं कि यह एक कारोबारी इकाई थी जो कारोबार के लिए इस्तेमाल होती थी। यानी हम दुनिया का नूर है, अगर हमारे पास रोशनी है, हमारे पास बरकत है, तो हम उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कारोबारी सतह से ना देखें, ना दुनिया की मसरूफियात से। पैमाना के नीचे रखना, बोझ के नीचे दबाना, दुनिया की मसरूफियात के अंदर दब जाना और रोशनी को मुनक्स ना करना, रिफ्लेक्ट ना करना, यह इस बात की तरफ इशारा है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुदा के कलाम को छुपाते हैं, नूर को दूसरों तक नहीं पहुंचाते। और इसी तरह जब यीशु मसीह ने कहा कि इसी तरह कोई चिराग जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखता, तो पलंग ऑफ कोर्स ये आराम को, सुस्ती को, काहली को जाहिर करता है कि अगर किसी को खुदा के कलाम की खुशखबरी का भेद मिला है और वो उसको बहम नहीं पहुंचाता लोगों तक, तो वो कलाम के बारे में सुस्ती करता है, वो कलाम की तशरीह को बयान करने से कतराता है। और ये हमारे लिए कलाम को रोकने के मुतरादिफ है, अंजील की बशारत को रोकने, बशारत में रुकावट के मुतरादिफ है, ना तो कारोबारी लिहाज से और ना सुस्ती और काहली से, बल्कि मुस्तैद होकर। कलाम कहता है कि वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे। जो लोग खिदमत को कारोबारी नुक्ते निगाह से देखते हैं, यह उनकी तरफ इशारा है जो चिराग को जलाकर पैमाना के नीचे या बर्तन से छुपा देते हैं और कारोबारी धंधों में, कारोबारी मसले मसाइल में फंसे रहते हैं, या जो झूठी खिदमत करते हैं या जो लालच की खिदमत करते हैं, यह उनकी तरफ है। और इससे यह भी मुराद है कि ईमानदार, उसके अंदर खिदमत की तो अर्ज है, लेकिन वो अपने आप को दुनिया के बखेड़ों में फंसाए रखते हैं, और ये सही बात नहीं कलाम के मुताबिक। अगर हम कलाम को दूसरों तक नहीं पहुंचाते, कलाम में पौलुस तीमुथियुस को कहता है, उसके गालबन दूसरे तीमुथियुस के पहले बाब की 6 आयत में, कि तू उस खिदमत को जो मेरे हाथ रखने के सबब से तुझे मिली है चमका दे। हम कैसे नूर को मुनक्स कर सकते हैं, कैसे चमका सकते हैं? मुस्तैदी से, ईमानदारी से, दुनिया के बखेड़ों में अपने आप को फंसाने से नहीं। और खुदा की यह मर्जी कभी भी नहीं थी, ना है, कि उसकी तालीमात को या निजात के भेद को जो यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा है, हम सिर्फ अपने तक महदूद रखें। जैसे चिराग को जलाकर पैमाना के नीचे या पलंग के नीचे, तो उसकी रोशनी महज उसके अपने तक रहती है, बल्कि हम उसकी रोशनी को दयानतदारी से दूसरों तक पहुंचाएं। और जितना हम उसकी खिदमत करें, जितना उसके कलाम के भेद को हम बयान करेंगे, हमें खुदा की तरफ से उतनी ही बरकत, उतने ही और भेद, उतने ही और मुकाशिफात मिलेंगे। कलाम में हम ज़बूर 23 में क्या पढ़ते हैं कि तू मेरा प्याला लबरेज करता है। तो प्याला उसी सूरत में लबरेज होता है जब वो खाली हो, जब हम अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश करते हैं, जो भेद हमारे पास है उसको हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो फिर खुदा हमें और भरता है, और ज्यादा हमें रोशनी पहुंचाता है, ताकि उससे हम दूसरों को रोशनी पहुंचा सकें। और इससे लिखा है ताकि तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद हो, तुम्हारे नेक कामों से, तुम्हारे अच्छे कामों के सबब से। अक्सर ईमानदारों के गुनाहों के बायस खुदा की तमजीद नहीं, बल्कि हम उसकी तजलील करते हैं। कलाम में लिखा है कि हम अपने हर रोज गुनाह करके यीशु मसीह को एलानिया मसलूब करते हैं, जबकि इस तमसील में जब हम, यीशु मसीह कहता है कि जब तुम रोशनी को मुनक्स करोगे, तुम्हारे अच्छे कामों से आसमानी बाप की तमजीद होगी। फिर हम ये भी देखते हैं कि कभी किसी ने चिराग को इसलिए या कैंडल को या रोशनी को इसलिए नहीं जलाया कि वो जलाकर उस रोशनी को देखें और उसकी तमजीद करें। नहीं, चिराग, कैंडल, रोशनी इसीलिए जलाई जाती है कि उसकी रोशनी में उसे नहीं, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को देखा जाए, ढूंढा जाए, तलाश किया जाए। और रूहुल कुद्स मुतलाशी है ऐसे लोगों का। कलाम के वसीला से हमें तलाश करने की जरूरत है।
चिराग इसीलिए जलाया जाता है कि उसकी रोशनी में दूसरों को देखा जा सके। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दुनिया का नूर होकर आया हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? इब्ने आदम इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे, तलाश करे, और यही हमारी जिम्मेदारी है। अगर उसने हमें नूर कहा है, अगर उसने ये वाकई कहा है, अगर उसने हमारे ही बारे में कहा है कि तुम दुनिया का नूर हो, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस रोशनी में, कलाम की रोशनी में, यीशु मसीह में खोए हुओं को ढूंढें। हम शायद नूर में तो बहुत से ईमानदार ऐसे हैं जो शायद आज के दौर में नूर में तो चलना नहीं चाहते, यीशु मसीह की रिफाकत में तो रहना नहीं चाहते, तो भी तारीकी में चमकना चाहते हैं। यह कैसे मुमकिन है? जब तक कि आप खुद नूर को लेकर मुनक्स नहीं करेंगे, आप तारीकी में रहेंगे। जब यीशु मसीह ने फिर यह कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, तो इससे एक और बात भी हमारे सामने आती है कि अगर यीशु मसीह ने यह कहा है कि तुम दुनिया का नूर हो, तो यकीनन दुनिया में तारीकी है, यकीनन आप ईमानदारों के इर्द गिर्द तारीकी है। हम तारीकी के अंदर भेजे गए हैं ताकि हम वहां चमकें और यीशु मसीह का नूर चमकाएं और यीशु मसीह की पहचान कराएं, ताकि लोग निजात पाएं। जो कोई यीशु मसीह को पहचान लेता है वो निजात पा सकता है। लेकिन यीशु मसीह की पहचान किसके वसीले से है? हम ईमानदारों के वसीले से है कि तुम दुनिया का नूर हो। अजीजों, ये तमसील हमारी अपनी खिदमत की जानिब इशारा करती है, कमजोर हाथों से नहीं, बल्कि कमजोर बदन से नहीं, बल्कि रूह में मुस्तैद होकर हमें उसके नूर को दूसरों तक पहुंचाना है, और यही हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और मकसद है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, इस पैगाम को जो बाद में सुनेंगे, देखेंगे, उन सब के लिए मैं दुआ करना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू के नाम में पाक यहोवा, मैं तेरी हजूरी में आता और जमीन तक झुककर तुझे सिजदा करता और मुबारक कहता हूँ। आसमानी पिता, इकरार करता हूँ अपनी ही जात में मैं खाक और आग हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूँ तेरे फजल से और तेरे ही फजल का सहारा लेकर मैं तेरी हजूरी में आता और तुझे खुदा धन्यवाद कहता हूँ, तेरी तमजीद करता हूँ। इस वक्त जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए खुदा तेरे आसमान पर से सलामती की दुआ खैर चाहता हूँ। जिन लोगों के खुदा जो भी मसाइल हैं, अगर कोई बीमार है, मैं उसकी बीमारी के लिए तेरे आसमान पर से शिफा चाहता हूं। खुदावंद उसकी बीमारी के लिए दुआ करता। अगर कोई माली मुश्किलात में है, खुदावंद उनके बंधनों को तोड़, उनको माली मुश्किलात से रिहाई दे, क्योंकि दुनिया के ओ खुदावंद ज़मीन आसमान के सारे खजाने, सोने चांदी के सारे पहाड़ तेरे हैं। इसी तौर से खुदा अगर कोई कारोबारी मुश्किलात में है, मैं उनके सारी कारोबारी मुश्किलात को खुदावंद यीशु के नाम में तेरी हजूरी में तोड़ता हूं, आजादी का ऐलान करता हूं। अगर कोई खुदा खानदानी परेशानी के अंदर है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की, शोहर की, बीवी की, बहन भाइयों की, वालिदैन की, अजीज रिश्तेदारों की, दोस्तों की, खुदा मैं उन तमाम खानदानी बंधनों को तोड़ने वाली बदरूहों को यीशु के नाम में झड़कता, डांटता और इब्लीस की सारी दीदनी और नादीदी तासीरों को बांधता और खुदा तेरे लोगों की आजादी का ऐलान करता हूं, ताकि तुझ में हम खुदा आजाद होकर तेरे नाम की तमजीद का वसीला बने और तेरे नूर को दुनिया तक लेकर जाएं। हाँ खुदा दुनिया तारीकी के अंदर बसती है, हमें फजल दे के तेरे कलाम के नूर को लोगों तक पहुंचा सके। सारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।